Just see this house ascendant has two planets in it, Sun and Mercury. Sun and Mercury, they are placed in this house. So they will have an aspect only on the 7th position from their own position. तो यहाँ से जो 7th position है ये है this house, 7th house. इसका मतलब जो सन और मरकरी का जो aspect होगा that will be only on this house, which is the 7th house in this case. They will not have aspect on any other place. तो इन दो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस कहाँ हुआ? यहाँ बैठे हुए हैं तो नेचुरली उसको तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं. उसके अलावा इस हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 7th हाउस को भी, बिकॉज दे आर आस्पेक्टिंग दिस पर्टिकुलर हाउस. ये सन और मरकरी का एस्पेक्ट हो गया. अब जैसे वीनस है, वीनस का भी अपना 7th एस्पेक्ट होता है, इसके अलावा कोई एस्पेक्ट नहीं होता. तो वीनस का अगर हम 7th पोजीशन देखें तो दिस इज द 7th पोजीशन, which is the 5th house in this case. It means Venus will have influence on this house, 11th house, as well as on this house also, because this is the 7th position from Venus. तो Venus का aspect इस house के ऊपर भी हो गया. अब let's consider Mars. Mars का placement यहाँ पर है. हमने कहा कि Mars का जो aspect होता है that is 4th and 8th in addition to the 7th aspect. तो यहाँ से 4th position, अगर यहाँ से आप 4th position काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4. It means Mars is having an aspect on this house, 12th house. यहाँ से 7th position काउंट करेंगे तो this is this position, 3rd house. और 8th काउंट करेंगे तो this is the 8th position. तो Mars is having influence on this house where it is posited. 4th house means 4th position means the 12th house. 7th position means the 3rd house, and 8th position means the 4th house of this horoscope. So Mars का influence इन houses के ऊपर हो गया. अब now let's talk of Mercury हो गया. Jupiter यहाँ placed है इस house में, which is the 5th house. तो Jupiter का जो aspect होता है वो 5th and 9th in addition to the 7th aspect. तो यहाँ से अगर आप 5 काउंट करेंगे इस पोजीशन से तो 5th position is this one. It means Jupiter is having an aspect on the 9th house in this horoscope. और 7th position ये हो गई, Jupiter is having an aspect on Venus also, this 11th house. और 9th position ये हो गई लग्न, तो Jupiter is having an aspect on this house also. इसका मतलब जो Jupiter का एसोसिएशन है इस horoscope में, वो 5th house में तो बैठा हुआ है और 9th house को aspect कर रहा है, 11th house को aspect कर रहा है और लग्न को aspect कर रहा है. इन 4 हाउसेस के ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है इन दिस हॉरोस्कोप. सैटर्न को कंसीडर करिए, दिस इज सैटर्न. सैटर्न का जो एस्पेक्ट है दैट इज 3rd and 10th in addition to the 7th aspect. तो सैटर्न यहाँ से 3rd पोजीशन ये है, दिस इज द 3rd पोजीशन, दैट इज द 8th हाउस ऑफ दिस हॉरोस्कोप. 7th is this position, 12th house. This is the 7th position. Or 10th position is this one, 3rd house. It means Saturn is having an influence on the 6th house where it is posited, and on the 8th house, on the 12th house, as well as the 3rd house in this horoscope by virtue of its aspect on these houses. तो इस तरह से हम हर प्लैनेट का एस्पेक्ट देखते हैं. और जैसा मैंने कहा कि सन, मून, मरकरी, वीनस का सिर्फ 7th एस्पेक्ट होता है और मंगल का 4th and 8th also, Jupiter is 5th and 9th also, and Saturn is 3rd and 10th aspect, in addition to every planet having aspect on the 7th position from its own position. तो ये aspect के बारे में, क्योंकि this is a very basic thing, and because we have to see the influence of each planet on the various houses, so we have to very clear कि कौन सा planet किन किन houses को influence कर रहा है, और वैसे ही हम फिर prediction भी करेंगे, वैसे ही हमारे result भी होंगे. Now we consider
how these planets move in the zodiac. Zodiac में ये planet किस speed से move करते हैं. और it's very important because we should know which planet is moving in which sign, how much it will stay, how long it will stay in a particular sign. तो ये बहुत एक basic requirement है for an astrologer. You should have a good idea about the movement of each planet in the zodiac. Sun जो है, it moves at the rate of 1 degree per day. सन का जो मूवमेंट है जोडियक में 1 डिग्री मूव करता है एक दिन में. इसका अर्थ क्या हुआ कि एक साइन को मूव करने में, साइन कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है एक राशि. तो एक साइन को मूव करने में इट विल टेक अराउंड 30 days. So depending on the speed, it may take 30-31 days actually to cross a sign. तो सन जो है हमारा एक राशि एक महीने में क्रॉस करता है और 12 राशियां 12 महीने में क्रॉस कर लेता है. और there are various calendars that we will discuss also कि they are based on the movement of sun alone. जैसे ही सन 0 डिग्री जोडियक में एंटर करता है तो the new year starts. और जैसे जैसे सन साइन चेंज करता है, राशि परिवर्तन करता है, वैसे वैसे नए महीने की शुरुआत हो जाती है. और जब भी साइन चेंज करता है सन, that is a special moment. Sun has been considered as a god. We exist only because of sun. तो जैसे ही साइन चेंज करता है तो we celebrate in the form of Sankranti. We celebrate it in the form of Sankranti. And Sankranti celebration is because sun is a spiritual planet. We don't celebrate in the form of entertainment. We celebrate in the form of पूजा पाठ. पूजा पाठ करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं. स्पिरिचुअल लेवल पर या रिलीजियस लेवल पर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और जिनको पता है वो 12 संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं. बट जैसा हम लोग जानते हैं कि फॉर ए लेमैन ओनली one Sankranti is known everywhere, that is Makar Sankranti. That we discussed also कि why Makar Sankranti is so important. But एक संक्रांति नहीं होती, 12 संक्रांतियां हमारे साल में होती हैं. और संक्रमण कहते हैं या ट्रांजिट फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन, कि जब भी सन राशि परिवर्तन करता है उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम संक्रांति बोलते हैं. और सिंपल है कि सन एक राशि क्रॉस करने में 1 महीने का समय लगाता है. हर महीने उसकी राशि परिवर्तन होता है और सन का जो मूवमेंट इस तरह से है कि अराउंड 15th of each month इट चेंजेस साइन. हर 15 तारीख को साइन चेंज करता है और 15 अप्रैल को ये मेष राशि में एंटर करता है. फर्स्ट 0 डिग्री ऑफ द जोडियक में एंटर करता है. तो 15 अप्रैल के आसपास नए साल की शुरुआत होती है और जैसे जैसे साइन चेंज करता रहता है वैसे वैसे नया महीना शुरू हो जाता है. तो ये सन का मूवमेंट है 1 डिग्री पर डे. नाउ let's talk about the movement of moon. Moon is the fastest moving planet. Moon is the fastest moving planet and it moves at the rate of 13 to 15 degree per day. 13 से 15 डिग्री एक दिन में मूव करता है. It's a very fast moving planet. और एक साइन जो है वो 30 डिग्री का होता है. एक साइन इज ऑफ 30 डिग्री. और मून को एक साइन क्रॉस करने में एग्जैक्टली 2.25 दिन का समय लगता है. 2.25 डे. मून टेक्स 2.25 डे टू क्रॉस ए साइन. 2.25 दिन में एक साइन क्रॉस कर देता है. और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एक साइन में 2.25 नक्षत्र भी होते हैं. इस साइन हैज 2.25 नक्षत्र. So what does it mean? It means that moon takes 1 day to cross a nakshatra. एक दिन में एक नक्षत्र क्रॉस करता है. And we discussed that there are 27 nakshatras in the zodiac. It means to cross the zodiac, it will take 27 days.
27 दिन में जो है ये जोडियक क्रॉस कर लेता है पूरा का पूरा जो है। और टू बी एग्जैक्ट इट इज 27.32 डेज। एग्जैक्ट जो टाइम है सन का पूरा जोडियक क्रॉस करने का, दैट इज 27.32 डेज। तो 27.32 डेज में ये पूरा का पूरा जोडियक क्रॉस कर लेता है एंड इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन। इट्स वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, और यही आपको पता होना चाहिए कि एक राशि में 2.25 दिन और एक नक्षत्र में 1 दिन तक रहता है ये प्लैनेट। Then we go to the Mars, Mangal, and it moves at the rate of 30 to 45 minutes per day. Now it's less than a degree. 30 to 45 minutes per day. इसका मतलब क्या हुआ कि Mars takes 1.5 to 2 months. अगर 30 मिनट का आप करेंगे तो 2 महीने हो गए, और 45 मिनट करेंगे तो 1.5 month हो गया। तो Mars takes 1.5 to 2 months to cross a sign. एक राशि में 1.5 से 2 महीने के बीच में रहता है मंगल। हर 1.5 से 2 महीने के बाद ये अपनी राशि को बदल देता है। Then we come to the Mercury. And Mercury, as you are seeing, that it moves from 65 to 100 minutes per day, slightly more than a degree, slightly more than a degree. जैसे सन 1 डिग्री मूव करता है तो ये भी करीब करीब 1 डिग्री के करीब ही मूव करता है। और जो सन और मरकरी का जो मूवमेंट है आपस में, वो इस तरह से है कि इन दोनों के बीच में एट ए टाइम द डिस्टेंस कैन नॉट बी मोर देन 29 डिग्री। सन और मरकरी का मूवमेंट जोडियक में इस तरह से है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम the maximum distance between these two planets cannot be more than 29 degree. कभी भी आप देखिए कि इन दो प्लैनेट के बीच में 29 डिग्री से ज्यादा का कभी भी डिस्टेंस नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप हॉरोस्कोप को कंसीडर करें तो हॉरोस्कोप में मरकरी या तो सन के साथ प्लेस्ड होगा या ज्यादा से ज्यादा एक हाउस का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। तो सन मरकरी विल बी आइदर विद द सन और मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 1 हाउस। इफ इट इज मोर देन 1 हाउस देन योर हॉरोस्कोप इज रॉन्ग एक्चुअली। तो सन और मरकरी का जो मूवमेंट है वो इस तरह से है कि दोनों के बीच में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस कैन नॉट बी मोर देन 29 डिग्री। देन वीनस, so Venus, as you are looking at, is also moving approximately 1 degree per day. So exact is 62 to 82 minutes per day. वो भी करीब करीब 1 डिग्री 1 दिन में मूव करता है। इसका अर्थ यह है कि जो सन और वीनस का डिस्टेंस है, अभी आपने देखा कि सन और मरकरी का जो डिस्टेंस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी मोर देन 29 डिग्री। उसी तरह से सन और वीनस का जो मूवमेंट है वो इस तरह से है कि दोनों के बीच में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस कैन नॉट बी मोर देन 47 डिग्री। कभी भी इन दोनों प्लैनेट के बीच में 47 डिग्री से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम हॉरोस्कोप को देखें तो सन और वीनस के बीच में मैक्सिमम 2 हाउस का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा है तो योर हॉरोस्कोप इज नॉट करेक्ट। तो सन और मरकरी के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कैन बी ऑफ 1 हाउस और सन और वीनस के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कैन बी ऑफ 2 हाउसेस। अगर आप देखें कोई भी हॉरोस्कोप, इफ वी टेक एनी हॉरोस्कोप, यहां देखिए सन मरकरी इकट्ठा बैठे हुए हैं सोके, और सन और वीनस में कितना डिफरेंस है? 2 हाउसेस का डिफरेंस है। दिस 2 हाउसेस, 1 एंड 2nd हाउस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है तो देन ये चार्ट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। और भी यू टेक एनी हॉरोस्कोप, ये 2nd हॉरोस्कोप है, इसमें देखिए सन और मरकरी इकट्ठा बैठे हुए हैं और सन और वीनस भी इकट्ठा बैठे हुए हैं। सर चार्ट आपका स्क्रीन पे आपका फेस आ रहा है,
चार्ट नहीं आ रहा है, प्लीज चार्ट को कर दीजिए। चार्ट नहीं आ रहा क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ चार्ट, हाँ आप ही, जस्ट अ मिनट। अब आ रहा है? दिस चार्ट यू कैन सी? आ रहा है, चार्ट आ रहा है जी सब। हाँ, तो ये जो सन और मरकरी यहाँ इकट्ठा है और सन वीनस भी इकट्ठा है, तो दिस इज ओके because maximum difference between sun and mercury can be one house and sun and venus can be two houses. और भी कोई भी चार्ट देखिए, यहाँ भी देखिए सन मरकरी इकट्ठा है और सन और वीनस के बीच में एक हाउस का डिफरेंस है। तो सन और वीनस के बीच में मैक्सिमम 2 हाउस का डिफरेंस हो सकता है कि सन अगर यहाँ पर है तो वीनस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बस इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये जब भी आप कोई भी हॉरोस्कोप देखिए तो आप उसका थोड़ा सा जस्ट लेकिन चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, ये हो सकता है कि सन से पहले हो। हाँ, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। सन और वीनस का 2 घर का डिफरेंस और सन और मरकरी का 1 हाउस का डिफरेंस, या इस साइड में हो या उस साइड में हो। नाउ वी कम टू द स्लो मूविंग प्लैनेट्स। अभी तक तो हम फास्ट मूविंग प्लैनेट की बात कर रहे थे, नाउ वी हैव कम टू द स्लो मूविंग प्लैनेट। और जुपिटर है गुरु, उसका मूवमेंट 5 to 15 minutes per day है। It means it takes 1 year to cross a sign. एक राशि में 1 साल तक रहता है ये जुपिटर, और 1 साल के बाद राशि चेंज करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जोडियक क्रॉस करने में ये 12 साल का टाइम लगाता है। 12 साल के बाद जुपिटर will come back to the same position because it remains in a sign for 1 year. जैसा आपने देखा अभी कि मार्च में जुपिटर का मूवमेंट हुआ था इन द कैप्रिकॉर्न साइन, और ये रहेगा 1 साल, अगले मार्च तक रहेगा, उसके बाद साइन चेंज करेगा। So it remains in a sign for 1 year and it takes 12 years to cross the zodiac. Then Saturn, it's the slowest moving planet. जैसे Moon is the fastest moving planet, Saturn is the slowest moving planet. और इसका जो मूवमेंट है जोडियक में, that is only 2 minutes per day. 2 minutes per day. And it takes 2.5 years. It takes 2.5 years to cross a sign. एक राशि में 2.5 साल का समय लगाता है। 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करता है। जैसे कि अभी शनि ने 24th of January, it changed the sign to Capricorn from Sagittarius. Now it will remain in this sign for 2.5 years. तो एक साइन में 2.5 साल, और जोडियक क्रॉस करने में it takes 30 years. 30 साल के बाद it comes back to the same position. और जो हम बात करते हैं साढ़े साती वगैरह का, जो आप लोग सब जानते हैं कि साढ़े साती मीन्स की द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न फॉर 7.5 years. It means the transit of Saturn in the 3 राशिस, 3 signs. तो कहते हैं कि जब मून हमारा माइंड है और Saturn is a planet which puts pressure, तो जब भी Saturn आपके जो मून, नेटल मून है या जो आपके हॉरोस्कोप में मून है, उसके एक घर पहले आता है, तो साढ़े साती की शुरू हो जाती है और उस साइन में 2.5 साल रहता है। फिर जिस साइन में मून है उसके ऊपर 2.5 साल रहता है, और फिर अगले साइन में भी 2.5 साल रहता है। तो ये जो 7.5 साल का टाइम है, इट इज नोन एज ए साढ़े साती। एंड generally we have different opinion about this साढ़े साती, and most of the people say that this is a real trying time for a native, but no. मून हमारा माइंड है और सैटर्न जो है वो प्रेशर डालता है। तो वन थिंग इज डेफिनेट कि माइंड के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट। उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, आप किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रेशर में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। लेकिन जो रिजल्ट होते हैं वो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड द सैटर्न। रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज बैड, समटाइम्स यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ साढ़े साती,
but most of the people, they think that the results are bad. It's really a trying time for everyone. No, for some it is a very good time, but for some it may really be a trying time. सिंपल सी बात है कि अगर मून वीक है आपके हॉरोस्कोप में, मून इज वेरी लो इन स्ट्रेंथ, और उसके ऊपर जब आप प्रेशर डालेंगे, आप देखिए जो लोग मेंटली वीक होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भी अगर प्रेशर आता है तो कैसे बिहेव करते हैं वो, दे गो अंडर डिप्रेशन, दे गेट मोर परटर्ब्ड। और अगर ऐसा ही मून किसी का बहुत स्ट्रांग है और उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? Mind will start acting, it will do some positive thing. तो इसलिए जो 7.5 के रिजल्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में मून और सैटर्न की पोजीशन क्या है। बट ऐसा घबराने की बात नहीं है कि किसी ने कहा 7.5 चल रही है तो बहुत आप परेशान हो जाते हैं। हम सब लोग जो है वो डिपेंड करता है कि मून और सैटर्न की आपके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है। ऐसी ढैया कहा जाता है कि ढैया भी चलती है कि जब मून से सैटर्न चौथे घर में जाता है या मून से सैटर्न 8वें घर में जाता है तो ढैया चलती है। और 4th हाउस हमारा डोमेस्टिक कंफर्ट का हाउस है, 8th हाउस हमारा लॉन्गेविटी का हाउस है। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, इट वांट्स अस टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट। हम लोग खराब समझते हैं बट it's a hard taskmaster. It wants you to lead a sensible or the legal life actually. तो ये डिसिप्लिन में आप रहिए। वो कहता है कि अगर आप जैसे मून से चौथे घर में जाता है तो चौथा घर हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है। It reminds you कि whether you are taking care of your domestic responsibilities or not. परिवार के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको निभा रहे हैं नहीं निभा रहे। अगर निभा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ढैया आई और चली गई, और अगर नहीं निभा रहे हैं तो वो फिर निभा देगा आपको जो है। ऐसे ही जो जब 8th हाउस में जाता है मून से तो दैट इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी। इट रिमाइंड्स यू वेदर यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ और नॉट। आप हेल्थ को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे अपनी। अगर हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं तो आपको कष्ट देता है, और अगर आप ऑलरेडी केयर कर रहे हैं अपनी हेल्थ की तो इट वोंट से एनीथिंग। अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर लें और लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में रहिए तो सैटर्न कभी भी परेशान नहीं करता। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल रेमेडी। और तीसरा हम लोगों ने ये भी कहा था कि जिस सैटर्न रिप्रेजेंट्स द पीपल हु वर्क हार्ड, जो लेबर क्लास होता है, जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग होते हैं, उनके प्रति हमारा रवैया थोड़ा सा भी ठीक होगा तो भी सैटर्न आपको कभी परेशान नहीं करेगा। फिर हम राहु केतु की बात करते हैं। और पहली चीज तो यह है कि राहु केतु दे आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और दूसरा इनका जो मोशन है, बाकी प्लैनेट तो डायरेक्ट मूव करते हैं, ये रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं, मतलब वक्री, मतलब उल्टा चलते हैं। जैसे हमने कहा कि शनि अभी 9th साइन में था, 10th साइन में गया, बट राहु अगर आज 3rd साइन में है तो जब ट्रांजिट होगा दैट विल बी इन द 2nd साइन, उल्टा। तो दैट इज द डिफरेंस, एक दूसरे के अपोजिट, एंड द मोशन इज ऑलवेज रेट्रोग्रेड। और कहा कि 3 मिनट पर डे के हिसाब से मूव करते हैं ये। और इफ यू कंसिडर 3 मिनट्स तो दे टेक 1.5 year, 18 months टू क्रॉस ए साइन। 18 महीने में जो है ये साइन क्रॉस करते हैं, 1.5 साल तक एक साइन में रहते हैं। और जोडियक क्रॉस करने में इनको 18 साल का समय लगता है। 18 साल के बाद दे कम बैक टू द सेम पोजीशन। तो ये राहु केतु का मूवमेंट है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, रेट्रोग्रेड मोशन है हमेशा, और एक साइन क्रॉस करने में 1.5 साल का समय, या पूरा जोडियक क्रॉस करने में 18 साल का समय लगता है। और अभी आप देख रहे हैं कि राहु केतु सितंबर मंथ में साइन चेंज करने वाले हैं।
अभी राहु इज इन द जेमिनी साइंस, केतु इज इन द सैजिटेरियस साइन। अभी इनका जो मूवमेंट होगा सितंबर मंथ में, तो राहु विल गो टू टॉरस साइन एंड केतु विल गो टू द स्कॉर्पियो साइन, उल्टा मूवमेंट होगा। हमारे हॉरोस्कोप जो बनाने का सिस्टम है, हम लोग इस सिस्टम को जो अभी आपने देखा भी इसमें सॉफ्टवेयर में, कि दिस सिस्टम इज नोन एज नॉर्थ इंडियन सिस्टम। और हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप इज बेसिकली ascendant, calculation of ascendant and calculation of all the position of all the planet in the zodiac। तो यहाँ पर 12 साइन होते हैं जोडियक में और 12 ही हमारे हाउसेस होते हैं। तो हमें सिर्फ ये प्रेजेंट करना है कि 12 साइन, 12 हाउसेस एंड विच प्लैनेट इज प्लेस्ड इन विच साइन, विच हाउस। और जो भी असेंडेंट मीन्स कि जो साइन राइज करता है इन द ईस्टर्न होराइजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखिए जोडियक का हम लोगों ने कहा था कि इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस once in 24 hours। 24 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है, राइट। और 12 साइन होते हैं। इसका मतलब एक साइन को मूव करने में इट विल टेक अबाउट 2 आवर्स टाइम। 2 घंटे में एक साइन मूव हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें जोडियक को, so what we find that after every 2 hours, after approximately every 2 hours, you will find a new sign of the zodiac rising in that direction। एक नया साइन आपको दिखाई पड़ेगा। और जो हमारा ascendant का कंसेप्ट है या फर्स्ट हाउस का कंसेप्ट है या लग्न का कंसेप्ट है, that is the sign of the zodiac which rises in the eastern horizon at the time of birth or at the time for which you are going to cast the horoscope। जिस समय का आपको हॉरोस्कोप बनाना है, बर्थ का है या किसी और समय का, उस समय में ईस्टर्न होराइजन में जोडियक का कौन सा साइन अपीयर हो रहा है, दैट साइन इज नोन एज द असेंडेंट और द फर्स्ट हाउस और द लग्ना ऑफ द हॉरोस्कोप। तो ये जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम है, इसमें हमने क्या किया कि इसको हमने फर्स्ट हाउस मान लिया। This particular portion, this is always first house। When it is the first house, then this is the second house, this is the third house, this is the fourth, this is fifth, sixth, seventh, eighth, like this in sequence from, and this is in the anti-clockwise direction। तो ये पहला घर हो गया। जो भी हमने कैलकुलेट किया कि ईस्टर्न होराइजन में कौन सा साइन अपीयर हो रहा है जोडियक एट द टाइम ऑफ बर्थ, वी राइट दैट साइन हियर। जो भी साइन है 1 to 12, we write that sign here, and that sign is the sign of the first house। और उसके बाद हम सीक्वेंस में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर आया, तो ये 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखे होंगे नंबर, which are the signs of the zodiac in different houses। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस बन जाता है, ये हमारा 4th हाउस है, ये हमारा 7th हाउस है, ये 10th हाउस है। अर्थ यह है कि in this system the houses are fixed। जब भी आपको 10th house को देखना है, तो you will always have a glance at this portion only, need not to go anywhere। this is the 10th house, this is the 5th house। तो इस सिस्टम में जो हाउसेस हैं वो फिक्स्ड हैं और जो साइंस होंगे वो वेरी करेंगे। अलग अलग हॉरोस्कोप में डिफरेंट साइंस होंगे डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द जोडियक एंड द फर्स्ट हाउस। और बर्थ के टाइम या जिस टाइम का हम उसको बना रहे हैं, उस टाइम कौन सा प्लैनेट किस राशि में है, कितने डिग्री पर है, वी ऑल राइट दोस थिंग्स हियर। तो इंफॉर्मेशन विल रिमेन द सेम। इंफॉर्मेशन इज अबाउट द हाउसेस 1 to 12 हाउसेस, अबाउट 9 planets, their position in the zodiac। Information will remain the same, but only thing is how we present the data, present the information। तो नॉर्थ इंडियन सिस्टम में हम इस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं।
कि यहाँ पर हाउसेस हमने फिक्स्ड कर दिए हैं और मूवमेंट हमारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से many people will come to you with a horoscope which is the South Indian style, कि इस टाइप का हॉरोस्कोप उनके पास होगा, तो you should be able to predict or understand that also. तो जैसा हमने कहा था कि जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है उसमें हाउसेस फिक्स्ड हैं, बट जो भी हॉरोस्कोप होगा, जो भी डायग्राम होगा, उसमें 12 ही हाउसेस होंगे, 12 ही साइन होंगे, उसके 12 ही पार्ट होंगे। तो यहाँ भी हमने उसको इस फॉर्मेट में बनाया, एक रेक्टेंगल बनाकर उसके 12 पार्ट कर दिए इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जस्ट 12 पार्ट्स ऑफ दिस। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, ऑल द 12 साइंस आर रिटन ओवर हियर। जैसे हम लोगों ने वहां पर हाउसेस फिक्स किए थे, फर्स्ट हाउस वाज फिक्स्ड, यहाँ क्या किया हमने, साइन को फिक्स कर दिया, राशियों को फिक्स्ड कर दिया कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एरीज साइन, दिस विल टॉरस, दिस इज जेमिनी, लाइक दिस। So just in contrast to the North Indian style where houses are fixed, here in this system we are fixing the signs, not the houses. And there the movement was anti-clockwise. Here the movement is clockwise. यहाँ हम एरीज टॉरस इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। But now question is कि how do we write about the ascendant? अब आपने ascendant कैलकुलेट किया बर्थ के टाइम, और जो भी ascendant आया, let us say Leo sign ascendant आया, तो यहाँ पर Leo sign में we write the ascendant also. यहाँ पर एक या तो कुछ भी इंडिकेशन होगा या लिखा होगा यहाँ पर this is the ascendant. So then this becomes the first house. This becomes the first house. This is second house, third house, fourth house, like this. So houses are varying in all the horoscopes, whereas the signs are fixed. और नॉर्थ इंडियन सिस्टम में हाउसेज आर फिक्स्ड एंड साइंस वेरी, हियर द साइंस आर फिक्स्ड एंड द हाउसेज आर कीप ऑन वेरिंग एक्चुअली इन द डिफरेंट हॉरोस्कोप्स। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है और वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपके पास आएंगे विद दिस हॉरोस्कोप। अब जो हाउसेज होते हैं कि उनको हम 3 तरह से एग्जामिन करते हैं। पहला, उस हाउस में कौन से प्लैनेट हैं, कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हमने देख लिया अभी। सेकंड, वी सी द लॉर्ड ऑफ पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, उस हाउस में कौन सा साइन है, उसका लॉर्ड क्या है और उस लॉर्ड की पोजीशन क्या है। ऐसे ही हर हाउस का एक कारक होता है जिसको हम सिग्निफिकेटर बोलते हैं। Each house has one of the planet as significator. कारक का मतलब या सिग्निफिकेटर का मतलब ये होता है कि उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस उस हाउस के मैटर्स में रहता है। That planet will have a major influence in the role of that house. उस हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस होंगे, उन सारे सिग्निफिकेशंस में उस प्लैनेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे वहां पर प्लैनेट का प्लेसमेंट का रहता है, उसके लॉर्ड का रहता है, ऐसे ही हर हाउस का एक कारक होता है जिसका कि रोल उस हाउस के मैटर्स में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको कारक कहते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है, जो हमारा बॉडी है, उसका कारक होता है सन। सन इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, सन इज अ प्लैनेट ऑफ वाइटैलिटी। आपके डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, योर ऑल योर एनर्जी एक्चुअली। एंड फर्स्ट हाउस डील्स विद द बॉडी ओनली, बॉडी एंड इट्स कैपेबिलिटी और द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। तो इसलिए सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द मैटर ऑफ फर्स्ट हाउस। तो वी से दैट सन इज द कारक ऑफ द फर्स्ट हाउस। सिमिलरली सेकंड हाउस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द वेल्थ। तो उसका जो कारक है वो जुपिटर हो जाता है, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो सेकंड हाउस के मैटर में जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जुपिटर इज द कारका फॉर द सेकंड हाउस। थर्ड हाउस हमने देखा कि आवर ओन एफर्ट्स, हमारा जो बाहुबल है, हमारे इनिशिएटिव हैं, हमारा
कॉन्फिडेंस है, हमारा करेज है, हमारा एडवेंचर है, उन चीजों का होता है, हमारे एफर्ट्स से। तो मार्स इज कनेक्टेड विद, मार्स इज एसोसिएटेड विद दोज थिंग्स। तो इसलिए मंगल जो है वो हमारा थर्ड हाउस का कारक हो जाता है। फोर्थ हाउस इज योर मदर और इमोशंस हैं आपके, और इनका जो मेन कारक है वो मून है, चंद्रमा है। So that's why चंद्रमा इज ए कारक फॉर फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को देखें तो फिफ्थ हाउस से आप प्रोजेनी देखते हैं, एंड हैप्पीनेस देयर फ्रॉम। वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी। और जुपिटर जैसे कहा कि इज ए प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो इन सब चीजों के लिए, और फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन आल्सो, तो इन सब चीजों के लिए जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर इज द कारका फॉर द फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हमारे अपोनेंट्स हैं, एनिमीज हैं, डिसीज है, डेट्स हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उनसे लड़ने के लिए these two planets become very important, Mars and Saturn. तो सिक्स्थ हाउस का जो हाउस ऑफ अपोनेंट है उसका जो कारक है, दो प्लैनेट हैं, मंगल और शनि, मार्स एंड सैटर्न। सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, द हाउस ऑफ योर स्पाउस। और जो मैरिज के कारक हैं दे आर डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल। Jupiter is the karaka for marriage in the case of female, and Venus is the karaka for marriage in the case of male. Male में Venus है कारक मैरिज का, और फीमेल में जो है मैरिज का कारक है जुपिटर। And now because the sex is also involved in the marriage, so sex का भी कारक है Venus मेल के केस में, और Mars है फीमेल के केस में। Karaka for the sex is Venus in the case of male and Mars in the case of female. Eighth house is basically the house of longevity. आपने अभी मार्स बोला फीमेल के केस में, यहाँ जुपिटर लिखा हुआ है। जुपिटर है शादी का कारक, मैंने कहा सेक्स का कारक जो है वो मार्स है फीमेल के केस में। सेवंथ हाउस का भी कारक होगा सर मार्स? इसका मार्स सेवंथ हाउस का फिर कारक भी है फॉर द सेक्स पर्पस, कारका फॉर द सेक्स। और जो मैरिज का कारक है वो जुपिटर है फीमेल के केस में, और मेल के केस में दोनों मैरिज का भी और सेक्स का भी कारक वीनस ही है। So that is the difference. Then eighth house is the house of longevity. Longevity. And longevity हमको कौन देता है? वो शनि देता है, Saturn. So Saturn has a major role in the matter of longevity. But लंबी आयु तो जरूर देता है Saturn. But कहते हैं कि Saturn is a lame planet. लंगड़ा planet है। लंगड़े का मतलब यहाँ पर यह है कि it has an adverse effect on your mobility. और वैसे भी हम देखते हैं कि जब शनि की दशा शुरू होती है या शनि का कोई एडवर्स ट्रांजिट हमारे ऊपर होता है तो हमारी मोबिलिटी इमीडिएटली इफेक्ट हो जाती है, हम बिस्तर पर आ जाते हैं, चलने फिरने में बाधा आ जाती है, कभी कमर में दर्द हो जाएगा, कभी पैरों में दर्द हो जाएगा। द फर्स्ट अटैक ऑफ सैटर्न इज इन योर मोबिलिटी। तो लंबी आयु तो देता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट बिस्तर पर लिटाकर आपका जो चलना फिरना बंद कराकर जब आपको लॉन्गेविटी देता है। तो बेसिक नेचर है प्लैनेट की, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि जब भी शनि की दशा ऑपरेट होती है तो इमीडिएटली यू सी दैट इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर मोबिलिटी। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ धर्मा, हाउस ऑफ योर फॉर्च्यून, एंड नेचुरली द कारका फॉर द सेम हैज टू बी जुपिटर। तो जुपिटर हमारा कारक हो जाता है हमारे भाग्य स्थान का या नाइन्थ हाउस का। Now, the main house for which we are all concerned is the 10th house. That is the house of profession. कर्म का स्थान है। और कर्म आपको कौन प्लैनेट कराता है? हमने कहा कि the Saturn is a hard taskmaster. Saturn is a planet of karma.
Saturn forces you to do some karma, and without blessing of Saturn you can't be prompted to do some karma. अब बहुत से लोग होते हैं बहुत लेजी होते हैं, काम करना ही नहीं चाहते. कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत करने में मजा आता है. तो that all depends on the position of Saturn. अगर Saturn आपका खराब है तो आप बहुत लेजी टाइप के होंगे, आप काम नहीं करना चाहेंगे. और Saturn अगर वेल प्लेस्ड है तो आप मेहनत करते हैं. और आप देखेंगे कि एक जो लेबर क्लास है या स्टेशन पर कुली है, उसका भी Saturn लगन में होता है, और एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका भी Saturn लगन में ही होता है. Saturn is such a planet which can make or mar a person by being in the same position. डिफरेंस सिर्फ ये है कि one is well placed, one is ill placed. तो अगर Saturn लगन में अगर अच्छा प्लेसमेंट है तो it can give you very high status because Saturn is a planet of status also. और लग्न में बैठकर ये 10th हाउस को एस्पेक्ट भी करता है, हाउस ऑफ प्रोफेशन को एस्पेक्ट भी करता है. तो Saturn जिनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है लग्न में, they rise to a particular status. और अगर Saturn is not well placed, then you remain in the same position throughout the life. अब क्वेश्चन तो यह है कि कर्म तो हमने करना शुरू कर दिया, and karma everyone is doing, even a labor class is doing, and we are also doing. There is no difference. But just see what is the difference between the two. एक लेबर क्लास कर्म कर रहा है, एक हम कर रहे हैं. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज वन इज अप्लाइंग इंटेलिजेंस इन द कर्मा एंड वन इज नॉट. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो मतलब ये हुआ कि जब तक हम कर्म में इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वी कांट ग्रो. एंड पर्पज इज कि व्हाट वी डू, वी वांट टू ग्रो इन दैट कर्मा एक्चुअली. तो मरकरी जो है वो इंटेलिजेंस का प्लैनेट है. तो कहा कि जैसे ही आप कर्म में या मेहनत में इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देते हैं, तो यू स्टार्ट ग्रोइंग, यू स्टार्ट प्रॉस्परिंग. आप उस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस कि एक आदमी मेहनत कर रहा है विदाउट अप्लाइंग इंटेलिजेंस, एंड वन इज डूइंग मेहनत विद इंटेलिजेंस, अप्लाइंग इंटेलिजेंस इन दैट. जैसे ही मरकरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हम कर्म में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं. अब यू फाइंड लॉट ऑफ पीपल इन द एनी कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली, दे हैव लॉट ऑफ गुड क्वालिटी, लॉट ऑफ स्किल इन देम. Some are very good artists, some are very good writers, some are very good actor or some dancers and all, but nobody knows them. कोई नहीं जानता उनको, and neither they have money with them. और हम लोग भी जब पढ़ते लिखते हैं तो एक ही एम होता है कि we should get the highest package. That is the only aim of everyone in the profession कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको पैसे भी मिलने चाहिए. और पैसे कब मिलेंगे? जब जुपिटर का ब्लेसिंग हो हमारे ऊपर. जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर विद यू इन द प्रोफेशन, यू कांट गेट द हाई पैकेज, यू कांट गेट मनी, यू कांट गेट प्रॉस्पेरिटी इन द प्रोफेशन. वो इम्पॉसिबल है. फिर चलिए पैसा भी हो गया, and a lot of people are there, they have a lot of money, but nobody knows them, and neither they want that somebody should know them. And what is the ultimate aim in the profession? कि दुनिया हमको जाने, we should get name and fame, everybody should know about us, and that is the ultimate aim which everyone thrives for. तो प्रोफेशन में वो मिलता है हमको सन से. जब तक आपका सन अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, you cannot get the name, fame and eminence in the profession. तो उसके लिए सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. सन should be well placed. ये 4 प्लैनेट हैं जो हमारे प्रोफेशन के कारक बन जाते हैं, and each one has a specific role that we have to understand. कि मान लीजिए कि सैटर्न आपका ठीक है, बट मरकरी, जुपिटर एंड सन ठीक नहीं है. आप मेहनत करते रहिए जिंदगी भर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एट ऑल. जो लेबर क्लास है वो थ्रू आउट लाइफ मेहनत करते हैं और
शुरू से अंत तक एक ही काम करते हैं, बोझट होते रहते हैं। अगर जैसे ही मरकरी ठीक हुआ, जुपिटर वीनस ठीक नहीं है, जुपिटर और सन ठीक नहीं है, तो आपके अंदर स्किल डेवलप हुई, आपने कुछ काम करना, अच्छा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जुपिटर और सन ठीक नहीं है तो आपको ना पैसा मिल रहा है ना आपको कुछ जान रहा है। और जैसे ही जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो आपको पैसा मिलना शुरू हो गया, प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो गई, आपकी ग्रोथ शुरू हो गई, तो पैसा मिल गया आपको। और सन अगर अच्छा है तो आपका नेम एंड फेम भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप देखते हैं कि लेट अस से कि सैटर्न, जुपिटर और सन बहुत वेल प्लेस्ड है, बट मरकरी इज नॉट वेल प्लेस्ड। लेट्स टेक ए सिचुएशन लाइक दैट, जिससे आपको पता लग गया कि हम कैसे देखते हैं कि क्या मिलेगा हमको प्रोफेशन में और क्या नहीं मिलेगा। Suppose Mercury is not well placed, you are not applying intelligence, but Jupiter and Sun are very well placed. तो क्या होगा? आप देखते हैं दिल्ली में छोले भटूरे वाले हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। उन्होंने कोई इंटेलिजेंस तो इन्वॉल्व किया नहीं, and they become so famous that everyone coming from even USA they ask for that छोले भटूरे ले जाने के लिए। यहाँ से समोसे वाले हैं वो इतने फेमस हो गए हैं पूरी दुनिया में, तो वो हो गया। और या मान लीजिए जुपिटर आपका नहीं है अच्छा, सैटर्न मरकरी अच्छा है और सन भी अच्छा है, तो अभी आपने देखा होगा कि वो मिस्टर श्रीवास्तव जो प्रोफेसर इन विदिशा, एक डांस करने से पूरी दुनिया में फेमस हो गया वो, बट पैसा नहीं मिलेगा, बट he became famous because sun was good, mercury was good and saturn was good actually। तो हर प्लैनेट का स्पेसिफिक रोल है, that you have to understand actually। और इसको देखकर आप हर व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपको प्रोफेशन में क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला। बहुत से लोग कहते हैं कि हाई पैकेज कम मिलेगा। हाई पैकेज जब भी मिलेगा जब जुपिटर ठीक होगा, फेम जब भी मिलेगा जब सन का प्लेसमेंट अच्छा होगा, मेहनत आप जब भी करेंगे जब सैटर्न इज आल्सो वेल प्लेस्ड। तो हर प्लैनेट का जो है वो स्पेसिफिक रोल है, उसके हिसाब से यू नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द प्रोफेशन और नॉट। फिर 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, एंड गेन्स मींस ऑल टाइप ऑफ गेन्स, वेदर इट्स अ मटेरियल गेन और द नॉन मटेरियल गेन्स। दोनों तरह के गेन्स जो है वो हम 11th हाउस से देखते हैं, और उसका जो कारक है वो जुपिटर है। और 12th हाउस हमारा त्रिक स्थान है, हमारे लॉसेस का हाउस है, और उसका जो कारक है वो शनि है। इस तरह से ईच प्लैनेट, ईच हाउस हैज कारका एज ए प्लैनेट, और इन प्लैनेट का रोल उस हाउस के अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब हम किसी भी हाउस को एसेस करते हैं रिजल्ट के पर्पस के लिए, तो हमें तीनों चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन से प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है उस हाउस के साथ, उस हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, और उस हाउस के कारक की क्या पोजीशन है। एंड ऑल द थ्री गेट्स द इक्वल वेटेज, 1/3 1/3 1/3। और इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे या इन टोटलिटी देखेंगे, तो देन वी हैव ए कंप्लीट असेसमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर हाउस कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस हाउस। तो मैं आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर नाउ, इट्स योर टर्न। आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, जो आपने 10th हाउस बोला है कर्मा का, उसमें सैटर्न, मर्करी और जुपिटर और सन कारकास हैं, तो ये हर हॉरोस्कोप में ये चारों कारकास होंगे ही, राइट? हर प्लैनेट तो आपके हॉरोस्कोप में सारे ही होंगे ना। नहीं, कारक ये है कि इन कारकों की पोजीशन क्या है आपके हॉरोस्कोप में, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। Planet, तो all planets you have in, everybody has all the planets in the birth chart, but we have to see the position of these planets in a particular horoscope. Suppose मतलब just एक suppose कर रही हूँ 10th हाउस में मर्करी बैठी हुए हैं, तो मर्करी मतलब इंटेलिजेंस तो है ही है। नहीं, खाली अगर 10th हाउस में मर्करी है तो इट डजंट कन्वे एनीथिंग। वो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी टोटल पोजीशन क्या है मरकरी की।
नहीं, आप सिर्फ कारक का समझाओ मुझे। एक कारक मतलब ये जो प्लैनेट है, जैसे आप लॉर्ड देख रहे हैं हर हाउस का, उसकी क्या पोजीशन है, ऐसे ही जो कारक होते हैं ना हर हाउस के, उनकी भी पोजीशन आपको अपने हॉरोस्कोप में देखनी है। जैसे आप किसी भी प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं, तो ऐसी कारक जो है, कारक बताए हर हाउस के, उनकी क्या पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में। ठीक है, ओके। Sir, I have one question. Yeah. I think, sir, in previous class you have told that Jupiter is nothing to do with material things. Correct. And here we are saying Jupiter is the Karak of the second house, which is a Dhan Bhav. So I'm a little bit confused over here. Like, you should understand the basic nature of the planet Jupiter. Let me tell you, first of all, I think to everyone, Neha Jain has joined today, and I was really overwhelmed by the keen interest shown by her. So she wanted to join even in between actually. So today she has joined. So I will request Neha also to just unmute the video and just give her introduction also. थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए सबको. Yeah. Hello everyone. I'm Neha Jain. I'm a CA by profession. I'm working in an MNC in Gurgaon. And all of a sudden, I don't know how I got an interest in astrology from the last 5-6 months. So I was exploring my teacher who can teach me and guide me in the right direction of the astrology. And I was rigorously searching for a true guru. And finally, with the grace of the God, I found Anil sir here. So I have joined this class mid of that, and he has given me the links for the previous classes which I have attended. I mean, I have taken offline. So thank you for giving me this opportunity to take the knowledge from you, sir. Thank you, Neha. And one Mr. Sanjay Chaturvedi also joined. I don't know whether he's there or not. He's also CA, and he has also joined the new class. And Naresh is also there with us in this class. He's a very competent astrologer, very knowledgeable person. And in spite of having all the problems because he can't see actually, but he's so expert in this field actually, he's worldwide known actually, he's a wonderful astrologer. But it's very kind to him that he's attending all these classes, but he's a very knowledgeable person actually. So thank you, sir. Thank you very much. So Neha, Sir, I have one doubt. Yeah. When we are born and a birth chart is made, it is of a particular place where we are born. Yeah. After say 25 years, if we change our native position, we are changing our position, we are going somewhere else. So the impact of planets would be different. Padas, nakshatras, planets. No, that will not change actually, because whenever you take birth, and that is the previous life का जो आपके कर्म की position है, that is indicated therein. So that will remain the same. But only thing is कि whatever you are doing in this life, what good karmas you are doing, so that will have an influence on the, if there is something adverse in the original horoscope, but you are doing some good karmas in this life, so definitely that will get reduced actually. The adverse effect of that will get reduced also. Okay, the location is not... No, location doesn't matter actually. And nowadays, even when we deal with the annual horoscopy or the worst fall, so in that also we take the original location only, where you have taken the birth. Okay, thank you, sir. So Neha was asking about Jupiter. Jupiter, yes, sir. Jupiter, we have to understand one thing. कि पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश करता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश करता है, और जिस हाउस के ऊपर उसका एस्पेक्ट होता है उसको प्रॉस्पर करता है। और शनि के बारे में लिखा गया कि जिस हाउस में बैठा हुआ होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उल्टा बिल्कुल जस्ट रिवर्स ऑफ दैट, और जिस हाउस के ऊपर एस्पेक्ट करता है उसको खराब करता है। एंड दिस यू विल फाइंड ऑलमोस्ट इन ऑल द बुक्स।
स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और कितनी भी आप एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट यूज करेंगे सब में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा. सो पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या करना है क्या नहीं करना. और just to understand, we have to understand the basic nature of these two planets. Jupiter, मैंने कहा कि इसे गुरु, इसे God. It's not a planet of material comforts. This nothing to do with the material comforts. जब भी हम अपने गुरु के पास जाते हैं, we don't ask कि गुरु जी हमको पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो. We never ask. We only say one thing कि गुरु जी please have your blessing on us. अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखिए, आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखिए. तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर आल्सो कि जुपिटर इज नथिंग टू डू विद द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. इसका मतलब ये होता है कि जुपिटर जहां भी बैठता है, जिस स्थान में बैठता है, उस हाउस के जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उनको खराब नहीं करता. किताबों में तो लिखा है खराब करता है, बट दिस इज नॉट द नेचर ऑफ जुपिटर टू हार्म एनीथिंग एक्चुअली. तो खराब नहीं करेगा, बट वी कैन ओनली से कि इट विल रिमेन न्यूट्रल. उस हाउस के मैटर को, जो मटेरियल एस्पेक्ट है, उनको प्रमोट नहीं करेगा बिल्कुल भी, बट खराब भी नहीं करेगा. जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि 5th हाउस है. 5th हाउस जो है वो हमारे प्रोजेनी का भी है, संतान का भी है, हमारे इंटेलिजेंस का भी है, हमारी क्रिएटिविटी का भी है, हमारी हायर एजुकेशन का भी है. तो संतान इज ए मटेरियल एस्पेक्ट. तो संतान के मामले में वो हम कहें कि जुपिटर 5th हाउस में बैठा हुआ है तो संतान अच्छी होगी, नो, नथिंग टू डू विद संतान. जुपिटर हैज नो रोल इन द संतान. बट जो नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट हैं, इंटेलिजेंस हुआ, क्रिएटिविटी हुआ, हायर एजुकेशन हुआ, उनको प्रमोट करेगा. दैट एस्पेक्ट विल गेट प्रमोटेड. ऐसे ही मान लीजिए 7th हाउस में है, मैरिज का घर है. दैट इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर द जुपिटर. ये गुरु है, और गुरु को आप अगर भोग स्थान में आप बैठा देंगे तो व्हाट गुरु विल फील. इट्स मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन ऑफ जुपिटर इन द 7th हाउस. और क्योंकि कारक भी होता है मैरिज का फीमेल के केस में, तो मैरिज को खराब करता है ये. और जो बात लिखी गई कि कारक भाव का नाश करता है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द हाउस ऑफ मैरिज. जुपिटर बैठकर वो वाकई में भाव का नाश कर देता है. लेकिन दूसरे हाउसेस में जो उस हाउस के मटेरियल सिग्निफिकेशंस होते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है. इज नॉट कंसर्न्ड विद दोस सिग्निफिकेशंस. प्लैनेट इज अनकंसर्न्ड विद द मटेरियल एस्पेक्ट. लेकिन जो उस हाउस के नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उनको बहुत प्रमोट करता है, उनके लिए बहुत अच्छा है. एंड द एस्पेक्ट इज ऑलवेज गुड. जुपिटर की जो ब्लेसिंग है वो ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्पेरिटी इन द लाइफ. तो ये है रोल जुपिटर का कि जो मटेरियल एस्पेक्ट है उनको प्रमोट नहीं करता. लेकिन 2nd हाउस मैंने कहा कि कारका इज द जुपिटर, तो उसका जो एस्पेक्ट होगा तो वेल्थ के मैटर को बढ़ाएगा. और 2nd हाउस के और भी बहुत सारे कारक हैं. इवन इनिशियल एजुकेशन है, स्पीच है, फेस है, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उनको प्रमोट करेगा, वहां बैठ के भी प्रमोट करेगा. और शनि जो है वो एक सबसे खराब प्लैनेट है, मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट है. और जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई अगर बहुत ही बदमाश व्यक्ति होता है तो उसके घर के आसपास कोई जाता भी नहीं है. इट्स फुली प्रोटेक्टेड, दैट हाउस इज फुली प्रोटेक्टेड. लेकिन जहां जहां निगाह पड़ जाती है उसकी तो हम डर लगता है हमको. तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल विद द सैटर्न हियर, कि सैटर्न जिस हाउस में बैठता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेलिफिक प्लैनेट, बट जहां भी बैठेगा उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, और जहां जहां उसका एस्पेक्ट होगा उसको खराब करेगा. तो दिस इज द पोजीशन अबाउट दिस टू प्लैनेट्स. क्योंकि अगर ये बात सही होती कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उसको खराब करेगा, तो 9th हाउस में बैठ के तो जुपिटर पूरी भाग्य का सत्यानाश कर देना चाहिए. बट इट्स वेरी गुड इन द 9th हाउस, क्योंकि जो 9th और 10th और 11th हाउसेस हैं हमारे, दे आर नॉन मटेरियलिस्टिक हाउसेस. कोई भी उसका जो सिग्निफिकेशन है वो मटेरियल सिग्निफिकेशन नहीं है. धर्म, कर्म और जो गेन है, आपके स्पिरिचुअल गेन है, उनके हाउसेस हैं ये. तो उनमें बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है. तो सर 6th हाउस में अगर हम बात करें एनिमीज का हाउस, जुपिटर को हम अच्छा मानेंगे, मतलब विल इट डिस्ट्रॉय एनिमीज, या उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन मटेरियलिस्टिक? देखिए, अभी हम
आगे क्लास में डिस्कस करेंगे वैसे तो, बट जो छठा घर है वो एनिमी का तो है, इसको हमने त्रिक हाउस भी कहा, बट साइमल्टेनियसली इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एन उपाच्य स्थान। उपाच्य का मतलब होता है हाउस ऑफ ग्रोथ, और जब हम आगे क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें उपाच्य हाउस में कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, मैंने कहा कि जुपिटर इज अ वंडरफुल इफ इट इज एस्पेक्टिंग ए पर्टिकुलर हाउस। अगर छठे घर में जुपिटर बैठता है तो किन किन हाउसेस को एस्पेक्ट करेगा, आप देखिए किन किन हाउसेस को एस्पेक्ट करेगा जुपिटर। सेकंड को, 2nd, 12th और 10th हाउस को। हाँ, 10th हाउस को, 12th हाउस को और 2nd हाउस को। हाँ जी। 10th house is the house of profession. 12th house is the house of moksha. And 2nd house is the house of wealth. So what else you want in the life? अगर ये तीनों चीजें आपको मिल जाए लाइफ में तो इससे बेटर पोजीशन तो कुछ हो ही नहीं सकती कि धर्म भी मिल रहा है, प्रोफेशन भी मिल रहा है और मोक्ष भी मिल रहा है आपको। तो this is supposed to be one of the very good position of Jupiter in the 6th house. ओके और सर अगर वो कुछ एफ्लिक्टेड हो जुपिटर या वो हाउस एफ्लिक्टेड हो किसी और प्लैनेट के एस्पेक्ट से, फिर तो वो बेनिफिट कम हो जाएंगे। हाँ, फिर तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब भी किसी भी हाउस के ऊपर 2 मेलेफिक का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो फिर नेचुरली प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो खराब हो जाता है। या जुपिटर अपने साइन में ना हो 6th हाउस में तो भी वो शायद इतने बेनिफिट एस्पेक्ट्स बट नहीं देगा। 6th हाउस में एज एन इंडिविजुअल प्लैनेट नो प्लैनेट इज बैड एक्चुअली। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी डिस्कस, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस हाउसेस। तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग इसको हमने उपाच्य स्थान कहा। इट्स अ वंडरफुल हाउस। जब आप 6th हाउस को स्टडी करेंगे ना तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है ये, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली, सो इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं कि बीमारी का है, इसका है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में हमारे वही हाउस है। ओके सर, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। राइट सर। एक सैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर। पूछिए। सर अभी जैसे आपने कहा कि सैटर्न जिस हाउस में होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल, विच मीन्स कि अगर वो मैरिज वाले हाउस में है तो वो मैरिज को ब्रेक नहीं होने देगा। नहीं, मैरिज को प्रोटेक्ट करेगा, बट देखिए बेसिक नेचर क्या है सैटर्न का। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ डिले आल्सो। तो डिले तो कराएगा मैरिज में, वो तो बेसिक नेचर है उसका। आपका जो स्पाउस होगा, मान लीजिए 7th हाउस में किसी के स्पाउस है तो स्पाउस विल बी लाइक सैटर्न, ही विल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सैटर्न एक्चुअली। अब सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव थिंकिंग वाला है, मेहनत करने वाला है, रंग काला है उसका, देखने में बुढ़ा लग रहा है, तो ऑल दोस क्वालिटीज विल ऑटोमेटिकली कम एक्चुअली। Okay. And once you understand the nature of each planet, then it's very easy to find out कि क्या होगा क्या नहीं। Okay sir, thank you. सर एक सैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। सैटर्न को अपन देख रहे हैं कि इट्स द कारक ऑफ 12th हाउस एंड द 6th हाउस। 6, 8, 12 तीनों का कारक है। हाँ, 6, 8 और 12 का कारक है जी। अगर वो 12th में बैठा है और वो प्रोटेक्टर है तो वो व्यय होने नहीं देगा या वो नेगेटिव इम्प्लीकेशन करेगा? कैसे कारक? No, it will not have negative implication because the karaka for that house as an individual planet is very good, but जैसे ही 2-3 अगर मेलेफिक का इन्फ्लुएंस आ गया उस हाउस के ऊपर फिर वो खराब करेगा। अगर सैटर्न आपका इंडिविजुअल प्लैनेट वहां बैठा हुआ है 12th हाउस में, इट्स नॉट बैड बिकॉज़ हेलो, कारका है उसका। हेलो जी, हेलो तो हेलो जी, हेलो हाँ हेलो हाँ, बोलिए। हेलो, हाँ बताइए। मी? Yes. Okay, great. हाँ बोलिए। So let's say the Saturn is significator of the 12th house, right? जी। And it's also overlooking the 6th house. छठे घर को भी वो देख रहा है। तो अगर छठे घर में मार्स बैठा है और वो मार्स अपने छठे घर का कारक है, बिल्कुल। सैटर्न और मार्स का अपने आप में रिलेशनशिप कैसा है? देखिए सैटर्न और मार्स बिल्कुल अपोजिट प्लैनेट हैं दोनों, तो और फिर दोनों मेलेफिक प्लैनेट हैं। मार्स इज ए फास्ट एक्टिंग प्लैनेट एंड सैटर्न इज ए स्लो एक्टिंग प्लैनेट। तो पहली चीज तो यह है कि जब भी मार्स और सैटर्न का कंबाइंड इन्फ्लुएंस आता है किसी भी हाउस के ऊपर, इट डैमेजेस दैट हाउस। 2 मेलेफिक का इन्फ्लुएंस हो गया तो
उस हाउस को डैमेज कर देगा। और दूसरा ये है कि सैटर्न मार्स का इन्फ्लुएंस इट मेक्स योर बॉडी एक्सीडेंट प्रोन आल्सो। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, वन इज द बोन एंड अनदर इज द मसल्स, तो उनकी हड्डियां बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होता है। और सैटर्न मार्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं लाइफ में। तो मतलब ये कारक का फिर नेगेटिव हुआ? नहीं, एज एन इंडिविजुअल प्लैनेट इज ओके। व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैलेफिक प्लैनेट ऑन अ पर्टिकुलर हाउस, कारक हुआ क्योंकि मार्स तो छठे घर का कारक है। तो अकेला है मार्स तो बहुत, मार्स इज वंडरफुल एक्शन करेगा। मार्स इज वंडरफुल प्लैनेट। एक्सीडेंट तो तभी कराएगा अगर शनि के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तभी शनि अगर दीप्ति जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरा बैंडविड्थ बहुत पुअर है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक हाँ वही मुझे लग रहा है। एक्सीडेंटल मेरे ख्याल तभी होएगा अगर उसका शनि के साथ मंगल का साथ हो या दृष्टि में हो, तभी एक्सीडेंटल अगर वो होएगा। एसोसिएटेड है तब, अगर वो एसोसिएटेड है तब, या वो ओवरलुकिंग एस्पेक्ट है तब। देखिए एसोसिएशन का मतलब सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, साथ में बैठा हो, एस्पेक्ट कर रहा हो, किसी भी तरह का हो, एसोसिएशन कवर्स ईच एस्पेक्ट। Okay. So, sir, I had a quick question. Yeah. But you're talking about the positions, yeah, but it also depends on the strength, right? You were talking about the degrees. So if correct, it's not very strong or weak, that will also have implications, right? Right. Oh, thank you. We assess the planet from two angles. One is the position of the planet in the zodiac, that we are all talking about the strength, etc. And second is the house in which it is posited. That also plays a very influential role. तो दोनों चीजों को हम देखेंगे और आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि houses become rather more important than the position of planet in the zodiac. Okay, so how will we know that whether it is placed in the right house, or how do we know when you say where? That we are going to discuss each and everything. Next time we will discuss about the houses. Sure. Okay. Yeah. And just to follow up, Uncle, on that one, just the notion of strengths, right? Agar हमने house discuss कर लिया, position of planet discuss कर लिया, but then we figure out कि one planet is not as strong as the other planet. जी. Or let's say अगर आप इस पिछले example में Saturn was overlooking Mars, right? Aspecting Mars. जी. Then they both were weak planets. तो फिर कैसे determination करेंगे? नहीं, वीक कैसे हैं मतलब डिग्रीज में जो उनकी स्ट्रेंथ है इन द हॉरोस्कोप। हाँ, स्ट्रेंथ देखिए, जो अगर मैलेफिक प्लैनेट हैं और आपको नुकसान कर रहे हैं तो जितना वीक है उतना अच्छा है आपके लिए। आप ज्यादा नुकसान क्यों करना चाहेंगे अपना? Okay. तो अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है या कोई मैलेफिक हाउस है, जो हम लोग 6 से 12 की बात कर रहे हैं, त्रिक हाउसेस की, जितना वीक होते हैं उतना अच्छा माना जाता है उनको, क्योंकि हम नुकसान नहीं बढ़ाना चाहते अपना। और जो बेनिफिक प्लैनेट है जो हमारे लिए शुभ है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। Got it. And then अंकल ये जो कंबस्ट प्लैनेट होते हैं, उसी वाले जो स्ट्रेंथ्स वाली चार्ट थी ना, डिग्रीज जिसमें दिखाते हैं और सी लिखा हो कंबस्ट हो, तो उस हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट देन? नहीं, if the planet is very near to the sun, actually we call it combust, and when the planet is combust it loses all its strength, जीरो हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ। और तो अगर राहु कंबस्ट है तो फिर बिल्कुल उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया? नहीं, राहु तो खुद ही सन को खराब करेगा, वो तो इन्फ्लुएंस ऑफ सन ओवर द राहु इज बैड फॉर बोथ। जो एक्लिप्स होता है ना, जैसे जो एक्लिप्स होता है तो राहु से तो लगता है वही ग्रहण वाली स्थितियां हो जाएंगी। हाँ, राहु से तो सन भी डरता है। Understood. लेकिन आज सर आपने जो 10 घर के जो कारक बताए, सूर्य, शनि, बुध और बृहस्पति जी, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने, बहुत अच्छा लगा। आपने जो कहा ना कि मरकरी अगर कमजोर है और जुपिटर और सन अगर अच्छे है, मजबूत है, तो वही आपने छोले वाले का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा। कई बार मैं भी यही सोचता था कि देखो यहाँ इनकी कोई इंटेलिजेंस नहीं लग रही,
लेकिन फिर भी कितना नाम है, कितनी प्रॉस्पेरिटी है इनके पास, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। अच्छा लगा। आप एक बच्चा देखिए, बच्चा एक कुएं में गिर जाता है या गड्ढे में गिर जाता है, आप 5 दिन तक सारे टीवी चैनल उसको कवर करते हैं, तो क्या है ये? हाँ, प्रिंस नाम का एक बच्चा था, उसको कितना नाम हुआ उसका, चैनल लग गए थे उसके पीछे। हाँ, 5 दिन तक सारी चैनल कवर कर रहे हैं, ही इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाँ सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ पूछिए। कर्म को प्रधानता देंगे या प्लैनेट्स को, या फिर हाउसेस को प्रधानता देंगे? नहीं समझा, नहीं, दोबारा बोलिए। देखिए, हम कहते हैं कि हमने कर्म किए क्योंकि हमसे कर्म क्या प्लैनेट्स ने करवाए, या कर्म ऐसे थे कि हमको ऐसे, प्लैनेट्स ऐसे थे कि हमको वो कर्म करने पड़े, मतलब पहले कर्म आते हैं। देखिए, ये पहली चीज आप सोच लीजिए कि जो प्लैनेट हैं, दे डोंट मेक यू भाग्यवादी, जिसको हम कहते हैं। इट्स एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जो प्लैनेट हमारे हॉरोस्कोप में हैं, दे ओनली गिव एन इंडिकेशन कि इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी लाइफ में। एंड नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस, बिकॉज दे आर गिविंग यू वेरी गुड गाइडेंस कि आप उस गाइडेंस के हिसाब से काम करिए। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज यू आर इन यूएसए और आप सुबह सुबह घर से निकलते हैं, तो वेदर फोरकास्ट देख के चलते हैं कि इस घंटे में पानी बरसेगा, तो मैं उसके हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करूं। एंड दे डू वेरी वेल, वो अपना सारा काम पूरा कराते हैं उसी हिसाब से। तो ये तो हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिल गई आपको बचपन के टाइम कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो उसके हिसाब से आप लाइफ को मोल्ड करिए। किसने कहा कि मत करो मोल्ड? और वही कर्म है, उसके हिसाब से आप कर्म करिए। दैट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू एस्ट्रोलॉजी। नहीं, कई बार से आपने अपनी उस क्लासेस में बोला कि ये हमसे कराता है, शनि हमसे कुछ करा रहा है, या फिर वो चीज करा नहीं रहा, मतलब इट इज इंडिकेटिंग कि यू आर लाइकली टू डू लाइक दिस। कराता कुछ नहीं। इट्स लाइक ए थर्मामीटर। जैसे आप थर्मामीटर से अपना बुखार मेजर करते हैं, तो इट्स लाइक ए थर्मामीटर कि इट्स नॉट ए कॉज ऑफ फीवर, इट ओनली रिवील्स फीवर। Sir, in that context. जी। Hello, can I ask? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। Okay. Sir, yes. Last question. Sorry, please go ahead. हाँ बताइए। सर, जैसे आपने बताया 6, 8, 12 जो त्रिक स्थान होते हैं उनका वीक होना ही अच्छा है, तो अगर उनमें कोई अच्छा पॉजिटिव जैसे जुपिटर जैसा प्लैनेट और अच्छे एक्सॉल्टेड स्टेट में हो, तो उसको अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा? हाउस तो बेटर हो गया, लेकिन वो प्लैनेट तो खराब हो गया ना आपका। एक जुपिटर प्लैनेट 8th हाउस में बैठकर, for the significations of 8th house is wonderful. Okay. But जो मेन प्लैनेट है आपकी लाइफ का, जो प्रॉस्पेरिटी देता है आपको, वो बेकार हो गया, वीक हो गया बहुत। Okay, even if it is exalted या जो, हाँ नेचुरली मैंने कहा कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो then you find that how the houses become much more important than the position of planet in the zodiac. तो हाउसेस का रोल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। So one last question from my side. जी। So if for example in case Mercury is in got combust, so it means the person doesn't have any intelligence, right? No, देखिए मैंने अभी इतनी देर से बात हो रही थी, हम लोग मूवमेंट कंसिडर कर रहे थे प्लैनेट का, उसमें हम यही कह रहे थे कि जो सन और मरकरी का मूवमेंट है वो इस टाइप से है कि मरकरी कैन नॉट बी मोर देन 29 डिग्री अपार्ट फ्रॉम सन, उसको सन के पास ही रहना है। तो पहली चीज तो है कि हम मरकरी को इतना कम्बस्ट नहीं मानते, फर्स्ट थिंग। और जब सन और मरकरी इकट्ठा होते हैं कैसे भी, तो एक बुध आदित्य योग बनता है विच इज कंसर्न्ड विद द इंटेलिजेंस ऑफ द नेटिव एक्चुअली। बट जब ये बहुत पास आ जाते हैं, से लेस देन 5 डिग्री, तो हम कहते हैं कि ये बुध आदित्य योग बनने की बजाय इट बिकम्स ए निपुण योग। निपुण योग और बुध आदित्य योग में क्या अंतर है? निपुण योग इज एक्सपर्टाइज इन वन फील्ड। You may be very good mechanic, you may be very good artist, but not an overall intelligent person. तो ये डिफरेंस आ जाता है कि जब
मरकरी सन के बहुत पास आता है, तो इन प्लेस ऑफ बीइंग एन ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन, ही बिकम्स एक्सपर्ट इन सम पर्टिकुलर फील्ड ओनली. उसको हम निपुण योग कहते हैं. ओके, इन दैट सेंस उसको कॉम्बस नहीं माना जाएगा. कॉम्बस नहीं, मरकरी को कॉम्बस नहीं मानते क्योंकि वो तो रहता ही है उसके साथ. ओके ओके. Mars and Venus in 4th house, how is it? और किस हाउस में अच्छा होता है या किसी भी में अच्छा नहीं होता? नहीं, what we were saying, it's a good combination, no doubt, but from one angle it is bad actually. Venus जो है वो हमारे planet है, which is the planet of sensual pleasures, भोग का planet है. इसको सर अगर आप अनुमति दे तो ये कॉम्बिनेशन पहले घर में 7वें घर में इसको अच्छा नहीं मानते, और चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा के साथ. हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीनस है, इससे प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर, भोग का प्लैनेट है, भोग. हाँ जी, हाँ जी. और मंगल क्या है? मंगल एड्स एनर्जी टू दैट. और व्हाट डज इट मीन कि जब मंगल का जैसी एसोसिएशन हुआ वीनस के साथ, द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर. सर एक खास क्वेश्चन पूछो, बहुत गहरा भी है सर. पूछो. हेलो सर, एक क्वेश्चन था बहुत, ये मतलब आता जैसे वो आपने एक केस हुआ था इंडिया में जो निर्भया के साथ हुआ था जी. जो 4-5 जो लड़के थे, एक दिन पहले मतलब जिस दिन उन्होंने ये कर्म किया तो किन ग्रहों की वजह से वो किया कि जो उनको फांसी की सजा हुई. एक दिन पहले तो वो निर्दोष थे बिल्कुल, उन्हें किसी कोई सजा नहीं मिल सकती थी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं था. तो जिस दिन वो काम किया तो वो क्यों हुआ और किन ग्रहों के वजह से हुआ जो उन्होंने किया, जो इसकी वजह से उन्हें सजा मिली. हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप पर तो वो क्या कारण होता है कि ग्रह किसी से वो कर्म करवाते हैं फिर उसको सजा मिलती है. तो क्रिमिनल नेचर आदमी का किस एंगल से होगा? पहले तो लगन अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो, या 10th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और उससे भी ज्यादा जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 6th हाउस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रूएलिटी ऑफ ए पर्सन. कि जो अगर 6th हाउस किसी का बहुत स्ट्रांग होता है तो पर्सन बिकम्स वेरी क्रूअल. ही कैन डू एनीथिंग. जैसे इस टाइप के काम जो है, मारना है, किसी को मर्डर करना है या कुछ करना है, तो ही कैन डू दैट. तो 6th हाउस आल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. छठा घर जब किसी का बहुत स्ट्रांग होता है तब इस टाइप की प्रवृत्ति होती है आपके अंदर. जो 6th हाउस मजबूत होता है तो स्ट्रांग, हाँ, मतलब अभी वी कैन शो यू इन नंबर ऑफ हॉरोस्कोप की छठा घर बहुत स्ट्रांग है एंड दे हैव डन लॉट ऑफ मर्डर्स एक्चुअली. हाँ जी, हाँ जी. कैसे जज करेंगे हम 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है? कौन से प्लैनेट देखेंगे अभी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो वी विल सी हाउ वी असेस द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस. सर अगर अष्टक वर्ग में यहाँ पॉइंट ज्यादा हो जाए तो भी मजबूत मानेंगे. आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? Anyway, okay then, thank you so much. Good night and we meet tomorrow at the same time. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much.